Okay, so hi everyone, welcome back to this summer prep, summer lab skills series where you every day you are getting a new session which helps you to gain some skills, which helps you to add some value to your life, so that when it comes to your career, you are already prepared. You are like beforehand, you are prepared for some things which will be required, some prerequisites of achieving that success, you outperforming everyone. That would be the case when it comes to these sessions, right? So I hope all the sessions that have been done up until now have been meaningful to you. You have been getting a lot of insights from those sessions. You are able to learn a lot of things and you are implementing the same thing. Okay, it's not just that you are watching the sessions and you're done with it. No, what is required from your end is that you are proactively working on all those skills as well, be it the resume building, be it your LinkedIn basics, everything. Form your LinkedIn profile, get started with your resume things and all the communication classes that have been taking place. Utilize them to their utmost, like to your utmost benefit, right? So that would be the request before moving ahead with this session as well, where you will be getting to know about some basics of MS Excel. Everyone must have heard about Microsoft Excel. What's the use of it? Some info, some overview about it must have been there with everyone. A basic knowledge about it must have been there, right? But let's just explore a little bit more about what MS Excel can do, what are its basic functionality, and we'll try to have some actual examples over here. We'll try to put in some formulas in the Excel sheet and see how it works. Okay, also I would request you guys, when you are seeing this video, you will be having the access to the template of the sheet that I'll be working on. So the request will be downloaded, try to work along with the video, like parallelly you are watching the video and you are also trying to basically perform those functions or perform those formulas and yeah, learning actively. Okay, so that would be the case, that would be the request as well. Okay, so let's just get started. Okay, before we move ahead, the very first thing would be understanding why Excel is required. In this world today, a lot of data is out there and a lot of things are working on just data, right? But how to manage it? There will be a lot of information, but what you need to do is sort it down. You need to make meaning out of that data, right? So Excel helps you to do that. It helps you to manage, it helps you to organize the data which might be provided to you in a very haphazard way, but it helps you to organize it. It helps you to understand the data in a much better way, because if the data is clean, if the data is organized, you will be able to understand it, interpret it well, and make sense out of it, right? You will be able to take out the required information out of that data. So that is where Excel helps. Apart from that, Excel helps you to automate the calculation. You don't have to manually calculate everything. Let's just say there is a list of number that is provided to you and you have to get the sum out of it, or you have to get the you have to add all those numbers. Now you cannot sit down and put it in the calculator, every number one by one and adding it. Okay, that would be a very tedious task to do, and it will consume a lot of time of yours as well. So Excel helps you to automate a lot of calculations. It reduces the time, it makes you much more efficient, and that is why a lot of dependency is there on Excel in today's world as well. Apart from that, when you have data, you can make charts out of it. You can present that data in a much more appealing, visually appealing way. You can have bar charts, you can have pie charts, where you can present the data in a way that helps you to get more engagement out of the audience that you're interacting with. Okay, so in those aspects, Excel is very helpful. Even in tracking data, you can maintain a lot of sheets which will help you to record the data, and when you want to refer to that particular data, you can have it in a very organized way, and basically you can connect the dots and work on the future project that you have. Okay, so these are the major things where Excel helps. Now, let's just quickly go through the basics of the Excel, so that once we are performing the functions, once we are performing the formulas, we do not find difficulty in understanding what is being done, what that particular term refers to. Okay, so any particular cell is basically defined by
a name or an abbreviation. So the very first cell within an Excel would be basically named as A1, right? Now A refers to the column and 1 refers to the number of row. So since it's the very first cell, the column number would be A and the cell number would be 1. That is why that is how every cell in the Excel sheet, there are a lot of cell, okay? An Excel sheet is made up of a lot of cells in within that sheet, okay? Now every cell has a basically a unique name: A1, B1, B2, A2. Any cell that you click on, it will be having a particular a unique name to it. Okay. Now, uh, right. The type of data that you can basically access or basically have when it comes to Excel would be text, the name, the basic name. When you input a name in the cell, that would be basic text. Okay, you can input numbers as well. You can input date of birth or dates as well. Just not just date of birth, any other timeline, the month, all those sort of things. Definitely month would be counted under your text itself, because it's a entire series of alphabets, right? Then you can put in formulas as well. Those would be the type of data that you can see within an Excel sheet. Apart from that, you also have some basic functionalities. Since we are discussing about the basic things, basic functionality would be within an Excel sheet you can create multiple sheets as well. Okay, we'll see how we can do that as well. You can rename them as well. So let's just say you are performing, or you have undertaken a project. Right now that project does not have one part, it has a lot of parts. It consists of a lot of other different data. For example, let's just take an example of school itself. Okay, school consists of a lot of classes. Now you have class 1, class 2, class 10th and class 12th as well. So one has to maintain data for every class. So one can maintain a respective sheet for each of those classes. Now, class 1 must have their own separate sheet, class 2 must have their own separate sheet, so that the data is not getting mixed. There is no such confusion. The every other data for every class is independent of each other, and it is much more efficient to refer to a particular data when it comes to these Excel sheets. When it comes to extracting the correct information out of that data that you have. So those will be the basic things when we talk about Excel. Now let's quickly jump to some basic functions, basic formulas that we can use, that can at this particular stage when you're just getting started. These will be the basic things that you need to have a grip on, so that at least with these basic things you are not finding any you don't have to do it manually. Okay. Now, right. So the very first function or very first formula would be the sum formula, a very basic thing that we were discussing about as well, where you can add every value or every number that you have, you can add them. Okay, so the basic syntax would be, syntax is something, the way a formula is written. Basic language में अगर इसको समझोगे, so it's just that how the formula will be written. अगर आपको sum का function use करना है, so sum का function use करने के लिए what you need to write. Okay, so that is called the syntax. Now syntax for the sum could be either sum and you put in the bracket, and then you can basically write the numbers. You can add the plus sign, and then once you are done, you can close this bracket as well. Apart from that, there can be other way as well. What I think is we should actually get our hands dirty a little bit, and we should just try it on Excel instead of just discussing it. Okay, so I have a sheet. You will be having the access to the sheet as well. You can download it, and along with me you can practice it. Okay, so let me just open my sheet, and yes, this would be the sheet. Okay, now over here you have a data around a class. Okay, a class. This, now let's just understand this data as well. This is first of all how the Excel sheet looks like. There will be a lot of functions and a lot of features available within this Excel sheet as well. With time you will explore more, but right now let's just stick to what we were discussing, the basic formula. Now let's just first understand what the data is all about. This data consists of name and class. Okay, so what we can interpret from this is, for class 10 student, and specifically for 5 students,
whose name are Arman, Arjun, Priya, Dev, Riya and Aman, right? These are the 5 students जिनके हमारे पास math के marks हैं, science के marks हैं, English के marks हैं. Now there are a lot of other things that we'll be doing in order to arrive at the total marks. Average क्या है class का, है ना? Apart from that, what is the grade which we can assign as well, what would be the status, क्या ये पास है, क्या ये फेल है, क्या रैंक है हर पर्टिकुलर स्टूडेंट की, एंड व्हाट वुड बी द रिमार्क. अगर एज अ टीचर मेरे को कुछ रिमार्क देना होगा स्टूडेंट को, व्हाट कैन बी डन. Okay, so that would be one, that would be a lot of things that we'll be discussing, and I would request कि सब आप सब भी get started with the your Excel sheet, or get started with the learning or actually doing something over here. Okay, so the very first thing where we have to calculate, okay, इससे पहले हम एक बार जरा देख लेते हैं the thing that I was referring to, cell के जो basic references होते हैं. Okay, over here I'm clicking at A7. Can you see here? Under the clipboard section there is A7 written, है ना? Because I have selected A7 cell, the green outline has been is representing that I have selected that particular cell. Now the name of the cell would be A7, which is reflected over here. So you can understand A represent the column name and column number basically, and 7 represent the row number. So columns are basically named or termed as A, B, C, D, E, F, G in using the alphabets, and rows are named or termed as 1, 2, 3, 4. So using both column and row, first the column would come and then the row would come. Using these two, you basically provide a name to the cell. Okay, this is required because a lot of thing when you are putting in the value within the formula, basically cell is referred, or basically cell name is used. So over there you do not have confusion. That is why this clarity was required. Okay, so the very first function would be the sum, where it will be used. It will be used in calculating the total marks. Arjun, let's just say अर्जुन की हम अगर बात करें, अर्जुन क्लास 10th को बिलोंग करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन. नाउ हमें यूज किस चीज का है? अर्जुन के मैथ्स के मार्क्स पता है, साइंस के मार्क्स पता है, इंग्लिश के मार्क्स पता है. हमें अगर पता करना हो कि अर्जुन के टोटल स्कोर क्या बन रहे हैं, लेट्स जस्ट से ये सारे ही एग्जामिनेशन 100 मार्क्स के थे, है ना? तो आउट ऑफ 300 अर्जुन के क्या स्कोर बन रहे होंगे? सो व्हाट वी कैन डू इज सिंपली, एंड ऑल्सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी फॉर्मूले को लिखते हो, ओवर देयर यू गेट स्टार्टेड विद इक्वल का साइन. सो ये पुट इन द इक्वल साइन. अब सबसे बेसिक तरीका क्या हो सकता है जो आप हमेशा करते हो और जो कि थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा, वुड बी आपने इक्वल साइन की लगा, इक्वल साइन पुट किया, देन यू सिलेक्ट द मैथ मार्क्स ऑफ अर्जुन. सो आई एम सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर सेल, then I am adding the plus sign. Okay, then I'm selecting the science marks, then I'm again adding the plus sign, and then I'm selecting the English marks. So every time I'm selecting a cell, then I am putting the plus sign, then again I'm selecting the next cell which states the marks for science, है ना? And फिर again I'm putting the plus sign, और फिर मैं English के marks select करूँ. This is quite tedious, but you will get the answer as well. But how can you do it other way, where the sum formula would come? So आपने equal to का sign put किया, you write it as sum. Okay, sum लिखा आपने, then you put the bracket, you open the bracket, and what you can do is simply select this particular math cell for Arjun. Math के marks जो अर्जुन के वहां पे आप select करोगे, and with that you just drag your cursor towards English marks. Okay, keep like आप select करके रखोगे and you just drag your cursor to the towards English marks. ये पूरी row आपकी select हो गई जहां पे सारे marks stated थे, and then that's it. You click on enter and you'll get the total marks. You do not have to select one cell एक बार फिर then put in the plus sign. You do not have to do that. You can simply do it by just putting, again I can show you, just simply putting the equal sign, writing sum, opening the bracket. Also whenever you're opening up the bracket, you have to close the bracket as well. Okay, so I've opened the bracket, I'm dragging the entire like my cursor towards the English marks, I'm closing the bracket and enter. Okay, this is how I'll receive my marks for Arjun, total marks out of 300. Okay, now I have to do it for Priya, Dev, Riya and Aman as well. Again, will I be doing the same thing? सबके total marks निकालूंगी by writing equals to sum and then performing the entire function? No, what I can do is
यू कैन सी द ग्रीन बॉक्स, राइट? अब ग्रीन बॉक्स के ना यहाँ पे एकदम साइड में देखो एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है. व्हेन यू ब्रॉट योर कर्सर ओवर दैट स्क्वायर, एक बोल्ड प्लस का साइन यू कैन सी, ओके, इट अपीयर्स. ऐसे किसी भी एंटायर शीट में आप अपना कर्सर ड्रॉ मूव करोगे तो यू गेट बेसिकली बोल्ड, बेसिकली व्हाइट कलर का कर्सर. बट व्हेन यू ड्रैग इट ओवर टू दिस स्क्वायर, you get a black cursor. Okay, you just simply double click it, एंड जितना भी डेटा इस शीट में होगा ना उसके लिए ये पूरा फंक्शन परफॉर्म कर देगा. सिमिलरली अगर रो में होगा तो आप रो के लिए ड्रैग कर दो. तो अभी कॉलम के लिए है तो हमने कॉलम के लिए सिंपली डबल क्लिक कर दिया. डबल क्लिक नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको कर्सर दिख रहा है ब्लैक कलर का, यू सिंपली ड्रैग इट डाउन. जहां तक आपका डेटा है वहां तक ड्रैग डाउन कर दो एंड यू विल गेट द answer or the total marks for every individual. You do not have to put in the formula every time. Okay, now let's come to the average. Average perform करना है. Again, अगर हम देखें अर्जुन के एवरेज मार्क्स कितने हैं, उसके 3 मार्क्स 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के तो मार्क्स हैं, बट एवरेज मार्क्स क्या है? हम एवरेज का अगर मतलब समझें, what the function means is it helps to determine the mean score to assess the overall performance. मीन इज बेसिकली आपके पास तीन ऑलरेडी स्कोर्स हैं. नाउ एक अगर अंदाजा लगाना कि राउंड अबाउट इसका स्कोर इतना रहा है, इसकी परफॉर्मेंस आउट ऑफ 100 इसकी परफॉर्मेंस इतनी रही है सभी सब्जेक्ट में, है ना. तो वो कैसे करेंगे? व्हाट यू यूजुअली डू इज यू इन द मैनुअल वे, व्हाट यू डू इज यू एड एवरीथिंग एंड जो भी उसका जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपने यूज करते हो आप उसको उस एंटायर सम को उस नंबर से डिवाइड कर देते हो. दैट इज द बेसिक थिंग, है ना. बट ओवर हियर व्हाट वी कैन डू इज, कैन यू सी द सिंटेक्स, किस तरह से हमें अपने एवरेज के फॉर्मूले को यूज करना है. यू सिंपली पुट इक्वल्स टू एवरेज एंड सिलेक्ट द एंटायर रो, और जो भी सेल्स पे या जिन भी सेल्स पे आपको एक फंक्शन परफॉर्म करना है. सो वी पुट इन इक्वल टू, वी राइट इट एज एवरेज, वी ड्रैग इट over this entire over these all the cells where the marks are mentioned. Okay, just a minute, I didn't open the bracket and that is why वहां पे error आ गया, है ना. So I'm writing it average again, opening the bracket and dragging my cursor across the cells where the marks are mentioned and then simply enter. That is the average that I got for Arjun. So Arjun ने on an average 84 score किया है across all the subjects. That is what we can tell. And again, simply if we have to calculate for every other student, we'll drag it down and we get the average for all the students. Okay, now this is sorted. How we can provide grade as a teacher? If I have to provide grade, okay, marks हमें पता है, but I have to categorize everyone. A grade हो गया, B grade हो गया, grades मिलते हैं ना सबको. Now I have to categorize everyone. What we can do? What we can simply do is, over here our next function would come into the picture, and let's just quickly have a quick overview, like quick overview about the function, which will be if function. Okay, what is the use of if function? If function helps you to perform logical tests and return different values based on whether the condition is true or false. Okay, what does it state? आपको कुछ लॉजिक इंसर्ट करना. ओके, यहाँ पे हम लॉजिक क्या इंसर्ट करेंगे? मार्क्स हमें पता है, अब हम कहना चाहते हैं अगर इतने मार्क्स होंगे सो ये ग्रेड मिलना चाहिए, नहीं तो कोई और मार्क्स होगा तो आपको दूसरा ग्रेड मिलना चाहिए. दिस इज द लॉजिक दैट वी ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ओवर हियर. अब अगर वो ट्रू होगा या अगर ये लॉजिक सही बैठ रहा होगा, अगर मान लो 250 से ऊपर मार्क्स है, ये अगर सही चीज है, किसी अर्जुन के लिए चीज फिट हो रही है, सो उसको हम ए ग्रेड देंगे. अगर ऐसा है तो वो ए वैल्यू रिटर्न कर देगा. अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए? दिस इज वेयर इफ फंक्शन इज यूज्ड. ओके, सो इफ यू कैन सी द सिंटेक्स, इक्वल्स टू इफ व्हाट लॉजिकल टेस्ट यू वांट टू परफॉर्म, एंड अगर वो टेस्ट ट्रू होता है तो क्या वैल्यू जानी चाहिए, एंड अगर वो टेस्ट फॉल्स होता है तो कॉमा करके वो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी. लेट्स जस्ट सिंपली परफॉर्म इट ओवर है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, है ना. हम अगर देखें टोटल मार्क्स पे हम इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट 250 का भी हमारे पास मार्क्स है, 275 भी है, 230 भी है, 195 भी है, 150 भी है. सो व्हाट वी कैन डू इज, हम या तो एक रेंज भी डिवाइड कर लें. मान लो रेंज हम दे देंगे 250, ठीक है. 250 के ऊपर हुआ तो हम उसको ए दे देंगे, ठीक है. अगर वही चीज हमारी 200 के ऊपर हुई तो हम उसको बी ग्रेड प्रोवाइड करेंगे. अगर सिमिलरली ये 150 के ऊपर हुआ तो हम सी करेंगे. ऊपर या इक्वल हुआ तो हम विल बी प्रोवाइडिंग दिस सॉर्ट ऑफ ग्रेड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर
अगर 150 मतलब हमारा अगर 150 के ऊपर है या इक्वल है तो सी मिल गया, बट अगर ऐसा कुछ भी नहीं है 150 के भी नीचे होगा तो व्हाट विल डू सिंपली कि उसको डी मिलना चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज द लॉजिक दैट वी वांट टू पुट। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? वी पुट एन इक्वल साइन, वी राइट इट एज इफ, ओके, वी राइट इट एज इफ, हमने इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, देन अब हमें टोटल मार्क्स के ऊपर ये चीज बेसिकली हमें फंक्शन यूज करना था। सो वी आर सेलेक्टिंग द टोटल मार्क्स, हमने उस सेल को सेलेक्ट किया, बेसिकली हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सेल को सेलेक्ट करना है। सेल का आप वो नाम देख रहे हो F2, बिकॉज दिस इज वेयर अर्जुन के मार्क्स आर रिटर्न। अभी हम सिर्फ अर्जुन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, ठीक है। F2 हो गया। F2 के बाद हमें क्या लिखना है कि अगर F2 ये इसके टोटल मार्क्स है, अगर ये टोटल मार्क्स 250 से ऊपर हैं तो हम एक देंगे, अगर 250 से नहीं 150 के ऊपर है, सॉरी 200 के ऊपर है तो हम बी देंगे। एंड सिमिलरली जो भी हमने अभी डिस्कशन किया था हम वो सारी यहाँ पे पुट करेंगे, वो लॉजिक अपना पुट करेंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट इज, इफ हमने F2 ब्रैकेट ओपन किया, F2 दिस इज द लॉजिक दैट वी वांट। अगर F2 हमारा इक्वल ग्रेटर देन है या इक्वल टू है आपका बेसिकली 250 हमने डिसाइड किया था ना, 250 के अगर ऊपर है ना, इफ इट इज दैट द केस देन कॉमा करेंगे एंड देन व्हाट वन हैज, क्या हमें आउटपुट चाहिए तो उसको हम जो भी हमें आउटपुट चाहिए उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमास भी लिखेंगे। एंड वी वांट कि अगर 250 से ऊपर है तो हम उसको ए ग्रेड दे। अगर ऐसा नहीं है कॉमा लगाओ, अगर ऐसा नहीं है तो एक और इफ आ जाएगा, एंड दैट इज वेयर ये इफ फंक्शन कन्वर्ट हो जाता है नेस्टेड इफ में। नेस्टेड मतलब एक ही फंक्शन में बहुत सारे इफ्स की कंडीशन आ जाती है तो उसको हम नेस्टेड बोलते हैं। ओके, सो अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती, अगर 250 के ऊपर नहीं है, 250 के ऊपर होता है तो हम ए दे देंगे, या 250 के इक्वल है तो भी हम ए दे देंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो अगेन वी पुट इन इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, अगेन वी सिलेक्ट द सेम सेल, क्योंकि हमें इसी इसी मार्क्स के ऊपर देखना है कि ये मार्क्स कहाँ पे फिट हो रहे हैं, है ना। अब 250 के ऊपर नहीं था, अगर 250 के ऊपर नहीं है तो देखते हैं कि 200 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो अगर F2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 200, सो व्हाट आई वांट माय वैल्यू इज, कॉमा हमने पुट किया, हमें जो वैल्यू चाहिए वो बी बी, जो ग्रेड हम डिसाइन करेंगे, है ना। तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में बी ग्रेड कर दिया। ओके, दैट वुड बी वन थिंग। अब अगर ये भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो पा रही है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कॉमा किया, अगेन इफ लिखा, एंड वेयर वी पुट इन द नेक्स्ट द थर्ड कंडीशन। सो अगर हमारा F2 जो इसका अर्जुन के टोटल मार्क्स है, ठीक है, इफ F2 F2 दिखने लगा ना, जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया F2 वहां पे शो होने लगा, अगेन F2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 150, देन व्हाट आई वांट इज कि उसको सी ग्रेड मिल जाए, है ना। अब सारी कंडीशंस हमने लगा ली, हमने क्या कहा था, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो व्हाट आई वांट इज कि फिर तो सिंपली डी दे दो, अब तो क्या ही मार्क्स आएंगे। तो कॉमा किया एंड आई पुट इन डी, ठीक है। अब सिंस हम जितने भी ब्रैकेट लगाए हैं इस फंक्शन में उतने ब्रैकेट हम क्लोजिंग में भी लगाएंगे, जितने भी ब्रैकेट ओपन किए हैं ना उतने ही क्लोज भी करेंगे। सो एक तो हमारा ये हो गया पहले वाले इस लास्ट कंडीशन के लिए। देन आप ओपन ब्रैकेट्स काउंट कर लो, देयर आर 3 ओपन ब्रैकेट्स, तो 3 क्लोज ब्रैकेट्स हम यहाँ पे करेंगे एंड एंटर। ओके, हमने क्या बोला था, अगर 250 के ऊपर हुआ तो ए आना चाहिए। क्या अर्जुन के मार्क्स 250 के ऊपर हैं 253 हैं, तो हमने इसको क्या दे दिया, ए ग्रेड। अब सिमिलरली में प्रिया, देव, रिया, अमन के लिए भी करनी है सेम चीज। व्हाट यू डू इज सिंपली ड्रैग इट डाउन, हम दोबारा से पूरा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, एंड सबको सबके ग्रेड्स मिल गए, ठीक है। So this is how it works. Try it on your own. होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में पुट करो, विल ट्राई टू रिजॉल्व कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी। नाउ मार्क्स के बेसिस पे हमें ग्रेड दे दिया। अब अगर हमें डिसाइड करना कि ये पास है या फेल है, ठीक है, पास और फेल का हर सब्जेक्ट में एक क्राइटेरिया होता था ना, कि अगर आपने 40 के ऊपर मार्क्स स्कोर किया है तो आप पास हो, 40 के नीचे मार्क्स स्कोर करो तो फेल हो। हाउ डू वी डिसाइड दैट कि ओवरऑल आप पास हो या नहीं हो? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे भी आपकी इफ कंडीशन हो जाती है, बट इफ के साथ साथ एंड आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट व्हाट द फंक्शन really means. nested if we did, okay, if with and का क्या होता है, तो ये फंक्शन इसलिए यूज होता है सो दैट यू कैन चेक कि एक कंडीशन के साथ क्या बाकी की कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो रही हैं नहीं, तो चेक इफ मल्टीपल कंडीशंस आर ट्रू बिफोर रिटर्निंग द फाइनल रिजल्ट। सो हमारे पास अभी यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा ये सेम चीज, अभी हमारे पास यहाँ पे 3 मार्क्स है ना। सो तीनों मार्क्स के लिए हमें देखना है कि क्या ये कैटेगरी क्या तीनों ही मार्क्स एक
बेंचमार्क के ऊपर है, बेंचमार्क वाले नंबर के ऊपर है, अगर है तो पास, नहीं है तो फेल। सो अब इसलिए यहाँ पे इफ एंड का फंक्शन लगेगा, ठीक है। सो वी पुट इन इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड वी पुट इन एंड एज वेल, क्योंकि हमें इफ के साथ साथ सभी फंक्शन सभी मार्क्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना। सो इफ एंड, अब आपने ब्रैकेट फिर से ओपन किया क्योंकि एंड भी एक फंक्शन होता है, जैसे इफ एक फंक्शन है सॉरी, जैसे इफ एक फंक्शन है एंड भी एक फंक्शन होता है। तो इसलिए जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं ना तो उसके साथ एक ब्रैकेट ओपन करते हैं सो दैट वो प्रॉपर फंक्शन एग्जीक्यूट हो पाए। सो हमने इफ के साथ ब्रैकेट ओपन किया, एंड के साथ फिर से ब्रैकेट एक ओपन किया। अब यहाँ पे क्या लॉजिक जाएगा, हमें सारे मार्क्स चेक करने की 60 के ऊपर हम सेट करते हैं कि 60 के ऊपर होने चाहिए तभी पास करेंगे, नहीं तो फेल। तो अब हम यहाँ पे ये रो आपका सेल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर C2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है, ठीक है, ये कंडीशन है हमारी, 60 के ऊपर होने चाहिए इसके मार्क्स। C2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो मैथ्स के मार्क्स है अर्जुन के। इफ C2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 60, ठीक है, ये कंडीशन। उसके अलावा क्या हमें चेक करना है कि हमारे साथ साथ साइंस के मार्क्स भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 होने चाहिए। इसके अलावा हमारे इंग्लिश के मार्क्स भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 होने चाहिए। इसलिए इफ तो लगेगा ही लगेगा अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है, बट इफ के साथ एंड की यूज करें क्योंकि सिर्फ हम एक मार्क्स के लिए नहीं यहाँ पे फंक्शन को या देख रहे हैं कि पास है या फेल है, हम तीनों मार्क्स के लिए देख रहे हैं। सो इफ के साथ इसलिए एंड यूज हो रहा है। सो इफ एंड ये तीनों ही नंबर 60 के ऊपर हैं तो यू रिटर्न मी, ओके, एंड का फंक्शन हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे, एंड देन यू रिटर्न मी पास। तो हमें जो भी वैल्यू चाहिए होता है, जो भी आउटपुट हमें यहाँ पे शीट पे देखना, उसको हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं। सो विल राइट एज पास। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो पास भेजो, एल्स हमें क्या चाहिए, फेल, ठीक है। एंड दिस इज हाउ फेल को भी हम इन्वर्टेड। सो जब भी हम जिस भी कंडीशन को ट्रू साबित करना चाहते हैं उसके लिए तो हम इतना सारा फॉर्मूला लिखते हैं, बट जिस भी कंडीशन को हम एज अ फॉल्स प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए सिंपली जो भी आउटकम होता है ना वो कॉमा के बाद स्टेट करते हैं, दैट्स इट, दैट इज हाउ इट वर्क्स। ओके, विल क्लोज द parenthesis, the open brackets, okay, and enter simply and we say pass। क्यों, because यहाँ पे 85, 78, 90 तीनों ही मार्क्स 60 के ऊपर है। नाउ ऐसा हमें सबके लिए करना है तो we'll simply drag it down and see कि कौन पास कौन फेल है। एंड वी गॉट टू सी कि सभी पास है एक्सेप्ट फॉर अमन, क्योंकि उसके सारे ही सब्जेक्ट्स में 60 के बिलो मार्क्स है ना, सो वो फेल हो गए, बाकी सब पास है। अब मार्क्स सबके हैं, हाउ डू वी डिसाइड, ग्रेड मिल गया, पास और फेल डिसाइड हो गया, बट रैंक भी तो मैटर करते हैं, सबको रिजल्ट में इन द एंड रैंक में मिलती है। हाउ डू वी डिसाइड दैट, रैंक के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है एंड दैट इज बेसिकली, ओके सॉरी फॉर दैट, राइट, रैंक के लिए हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको हम देखते हैं कि हाउ डू वी बेसिकली उनको एक ऑर्डर में डिसाइड कर देते हैं और उसके लिए एक नंबर आ जाता है। ओके, ठीक है। नाउ ओवर हेयर रैंक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू रैंक, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे आप फॉर्मूला लिखना भी शुरू करते हो ना, देखो एक पूरा एक बॉक्स बन के आ जाता है जहाँ पे सारे आपके रेलेवेंट फॉर्मूलाज मेंशन होते हैं, आपके जो भी यूज में है आप उसको बेसिकली सेलेक्ट करके यू सेलेक्टेड, टैब का बटन दबाओगे एंड वो फॉर्मूला पूरा लिख कर आ जाएगा, ठीक है, विद ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हमें किस चीज को देखना था, टोटल मार्क्स को अरेंज करना था एंड उसके बेसिस पे हमें रैंक प्रोवाइड करनी थी। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली पहले इस एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, हमें देखना है कि ये नंबर बाकियों के रिस्पेक्ट में कैसे या कहाँ पे स्टैंड करता है। तो बेसिकली इस एक नंबर को सिलेक्ट किया, अब बाकियों के रेफरेंस में कैसे या बाकियों के रिस्पेक्ट में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द एंटायर रेंज ऑफ नंबर्स, जो बाकियों के भी टोटल मार्क्स है ना वो पूरा सिलेक्ट करेंगे। नाउ ओवर हेयर अगर आप सिंपली इसको क्लोज करके एंटर करोगे, यू विल गेट कि आउट ऑफ ऑल द 5 पीपल 253 विल बी ऑन द सेकेंड पोजिशन, ठीक है, मिल गया हमें। बट अगर यहाँ पे एक इशू आ जाएगा, अगर हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे ना, द रिजल्ट्स विल नॉट बी वैलिड। क्यों, क्योंकि एक
एक सिनारियो होता है वेर आप जैसे जैसे मूव करते हो ना, तो जो भी आपने फंक्शन लगाया था ना, वो नेक्स्ट सेल पे मूव करता जाता है. यू विल गेट टू लर्न अबाउट दैट एज वेल. बट जस्ट फॉर क्लैरिटी ओवर हियर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं. ब्लॉक करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था ना, आप डबल क्लिक करोगे ना किसी भी, सॉरी, जो भी आपके सेल पे जिस भी आपने फॉर्मूला लगाया ना, आप उसको डबल क्लिक करोगे तो आपको फॉर्मूला भी दिखने लगता है. सो जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमने F2 लिखा, ठीक है. हम किसके पूरे रिस्पेक्ट में इस F2 को कैलकुलेट करे थे या F2 को डिटरमाइन करे थे कि सेकंड रैंक पे आएगा, थर्ड रैंक पे, वो था हमारा ये पूरी रेंज, ये टोटल मार्क्स की पूरी रेंज. हम इस पूरी रेंज को फिक्स कर देंगे कि बस इतने में से ही आप देखो कि कहाँ पे स्टेट करा, इसके अलावा पूरी शीट में कोई भी नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, आपको वहां नहीं जाना. एक्सेल जी को बोल रहे हैं हम, आपको वहां नहीं जाना है, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम इस पूरे रेंज को, जो हमारा 253 मार्क्स से शुरू होकर 150 पे खत्म है, इसको हम फिक्स कर देंगे. फिक्स कैसे करते हैं, आप सिंपली जो F2 लिखा है ना, F और 2 के बीच में क्लिक करो, ठीक है. F और 2 के बीच में क्लिक करोगे, और जो है आपके कीबोर्ड पे एक डॉलर का साइन होता है ना, आप सिंपली शिफ्ट, मतलब उस डॉलर के साइन को यहाँ पे इंसर्ट करो बाय प्रेसिंग शिफ्ट, एंड उस की को प्रेस करोगे तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया, ठीक है. सिंपली आप F और F6 के लिए भी करोगे, तो F और 6 के बीच में आप कर्सर को लेके जाओ, एंड देन यू सिंपली पुट इन द डॉलर साइन. दिस इज हाउ यू फिक्स द एंटायर रेंज. आप किसी एक सेल को भी फिक्स कर सकते हो बाय पुटिंग दिस डॉलर साइन. देयर आर लॉट ऑफ अदर एडवांस कॉन्सेप्ट्स अराउंड फिक्सिंग अ सेल, बट अभी फॉर जस्ट योर रेफरेंस, अभी हम इतना डिसाइड करेंगे कि हमें अगर इस रेंज को पूरा फिक्स करना हो, तो आप दोनों जो सेल का है ना नाम, एब्रीविएशन, कॉलम और रो के बीच, कॉलम और रो के जो उससे बनता है, आप उसके बीच में सिंपली डॉलर साइन ऐड कर दो. दैट्स इट. दिस इज हाउ यू विल बी फिक्सिंग द एंटायर रेंज, एंड बेसिकली एंटर दबा दो. अब अगर आप यहाँ पे ड्रैग डाउन करोगे ना, सो विल गेट द रैंक फॉर एवरीवन. बट अगर यही चीज नहीं करी होती, लेट मी जस्ट अनडू एवरीथिंग दैट आई हैव डन. यहाँ पे अब अगर डबल क्लिक करा मैंने इस फॉर्मूले पे, यहाँ पे देखो कोई भी डॉलर साइन नहीं है, ठीक है. ये हमारा फॉर्मूला है. अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग डाउन करूंगी ना, सबको 111 दिखाने लगा. क्यों? क्योंकि विद एवरी सेल, जैसे जैसे इस पे सेकंड कैंडिडेट पे परफॉर्म किया फंक्शन, ये जो उसका सिलेक्शन वाली एरिया हो जाएगी ना, वो ये हो जाएगी. अगर थर्ड वाले बच्चे के लिए कैलकुलेट करेगा तो सिलेक्शन एरिया इधर, ये 5 सेल्स हो जाएंगी. इट शिफ्ट. सो वो शिफ्ट ना हो, इसलिए व्हाट वी डू इज कि हम इन सेल्स को ब्लॉक कर देते हैं, इस पूरी रेंज को हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है. सो डबल क्लिक किया, वापस से हम इस पूरी रेंज के ऊपर गए, एंड रेंज कहाँ से थी हमारी, F2 से लेके F6 हमारी रेंज थी, है ना. F2 से, तो हम F2 के बीच में डॉलर साइन इंसर्ट करेंगे, एंड F6 के भी बीच में हम डॉलर साइन इंसर्ट करेंगे, एंड देयर वी गो. You drag it down, you get the rank for every individual. Okay. Remarks is something जो basically you want to give. It's an additional thing. I'll just simply help you out with the basic function around it. Text join, concatenate and ampersand. जी जो हम and बोलते रहते हैं इसको, इसको हम ampersand बोलते हैं, है ना. इन तीनों का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आप कुछ टेक्स्ट को जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में हो ना, उसको आप ज्वाइंट कर देते हो एक साथ, एक सेल में लेके आ सकते हो. सो अभी अगर आपने देखा होगा, ये अर्जुन 10, 85 ये सारा दिया हुआ ना, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में. इफ यू वांट टू कैप्चर एवरी डेटा इन वन पर्टिकुलर सेल, यू कैन यूज दीज 3 फॉर्मूलाज: टेक्स्ट ज्वाइन, कॉन्कैटिनेट एंड एंड. बट इसमें से बेटर क्या होगा, टेक्स्ट ज्वाइन. टेक्स्ट ज्वाइन क्यों? क्योंकि ये सारे जो सेल्स आप जब ऐड करते हो ना डेटा, अगर आप कॉन्कैटिनेट करोगे या एंड वाला एम्फरसैंड वाला फंक्शन यूज करोगे, तो वहां पे स्पेस नहीं होगी आपके वर्ड के बीच, आपके टेक्स्ट के बीच में. सो व्हाट यू विल गेट एज इज बेसिकली दिस थिंग: अर्जुन, ठीक है, अर्जुन 10, 85 एंड सो ऑन 78. देयर इज नो स्पेस. सो अंडरस्टैंडिंग इट इन अ बेटर वे, क्लियरली, वो क्लीनलीनेस नहीं रहेगी आपके डेटा में, ठीक है. बट अगर लाना चाहो तो वो भी कर सकते हो. हाउ? बाय मैन्युअली इंसर्टिंग द स्पेस बिटवीन द फॉर्मूला, वो भी हम देख लेंगे. बट द थिंग इज हाउ यू कैन डू इट इन अ मच बेटर वे और मच स्मार्टर वे यूजिंग द टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन. सो हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वल टू टेक्स्ट
ज्वाइन, देखो यहाँ पे आ गया, यू प्रेस द टैप बटन ऑन योर कीबोर्ड। ओके, डीलिमिटर, डीलिमिटर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो आपके दो वर्ड्स, दो चीजों के बीच में एक लिमिट क्रिएट कर पाए या डिफरेंस क्रिएट कर पाए। इतनी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझो तो लिमिट क्रिएट कर पाए, ठीक है, या डिफरेंस क्रिएट कर पाए। ओवर हियर वी वांट डीलिमिटर एज स्पेस, कि दो वर्ड्स के बीच में स्पेस होना चाहिए सो दैट हमें पढ़ने में आसानी हो रही हो। सो जो अब हम क्या चाहते हैं, जो भी हम चीज चाहते हैं उसको हम हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। सो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास किए, स्पेस दबाया एंड फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज द स्पेस दैट आई वांट मेरे हर सेल के बीच में, हर सेल के कंटेंट के बीच में। ओके, देन व्हाट वी डू इज वी से ट्रू, दिस इज बेसिकली अ कंडीशन जो आप पुट करते हो सो दैट अगर जो भी रेंज सेलेक्ट कर रहे होगे ना उसमें कोई भी एम्प्टी सेल होगी तो वो उसको स्किप कर देता है, ठीक है। नाउ यू पुट इन कॉमा अगेन, यू आर डन विद दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी सिलेक्टिंग कि आपको कौन से बेसिकली कौन से रोज का कंटेंट चाहिए या कौन से सेल का कंटेंट चाहिए। तो व्हाट आई एम सेलेक्टिंग इज, मुझे मुझे लिखना है अर्जुन हैज सिक्योर्ड दिस मच मार्क्स और अर्जुन स्कोर्ड दिस मच मार्क्स। तो आई सिलेक्ट, जहां पे अर्जुन लिखा होगा उस सेल को सिलेक्ट करूंगी, अर्जुन सिलेक्ट किया मैंने, देन आई पुट इन द कॉमा, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू राइट, अब स्कोर्ड दिस मच मार्क्स, स्कोर्ड तो कहीं पे भी नहीं लिखा है, तो आई वांट स्कोर्ड टू बी रिफ्लेक्टेड इन माय रिजल्ट, है ना। तो आई अगेन बेसिकली पुट द डबल इन्वर्टेड कॉमास, आई विल राइट, और अर्जुन तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका तो आ जाएगा अर्जुन स्कोर्ड, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमास किया, ठीक है, कॉमा लगाया, मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें लिखना है कि इतने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, तो हमने उस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा 253, वो अपने आप इनपुट ले लेगा, व्हाट आई हैव टू राइट इज मार्क्स। सो आई इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने ओपन किए, मार्क्स लिखा, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, एंड दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है। नाउ यू क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, we got our statement as Arjun scored 253 marks, and I can do the same for everyone else as well. Riya scored itna marks, Dev scored itna marks. Okay, this is how you can use the basically the text join function. अगर हम concatenate की बात करते हैं, ये सिमिलर चीज के लिए ही यूज होता है, यू जॉइन टेक्स्ट, बट यहाँ पे आपको स्पेस बेसिकली मैनुअली एंटर करनी होती है। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ओवर हियर, I'll write equals to concatenate, अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओवर है, दिस इज द फंक्शन जो आपको आ जा रहा है। अगर नई स्पेलिंग याद हो रही तो यू कैन रिफर टू, स्टार्टिंग के वर्ड्स याद है तो यू कैन रिफर टू दिस एंटायर लिस्ट, और वहां पे आप सिलेक्ट करके टैब दबाओगे तो आपका फंक्शन लिख जाएगा। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट का व्हाट वी कैन डू इज, हमने अर्जुन सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, नाउ वट एवर आई वॉन्ट एज एन इनपुट, वहां पे यहाँ पे डीलिमिटर जैसा कुछ भी नहीं यूज होगा, है ना। अभी क्या कहता, हमें जहां पे भी स्पेस चाहिए होगा हम वहां पे स्पेस को एंटर करेंगे। इससे पहले हमने टेक्स्ट जॉइन में क्या किया था, वी जस्ट सिंपली एक जगह में लिख दिया कि हमें डीलिमिटर स्पेस की तरह चाहिए, एंड उसने हर सेल को ज्वाइन करते वक्त स्पेस लगा दिया था। बट ओवर हियर हम एक सेल सेलेक्ट करी, उसके बाद हमें स्पेस चाहिए तो हमें लिखना पड़ेगा स्पेस की, तो इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास ओपन किया, स्पेस दबाया कि मुझे अब स्पेस चाहिए, और इसके बाद अर्जुन के नाम के बाद लिखो कि स्कोर्ड, ठीक है, देन अगेन स्पेस, क्योंकि मुझे अब इसके बाद सेल सेलेक्ट करूंगी और स्कोर्ड के बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो मैंने स्पेस फिर से एंटर किया, मैंने अपना इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया। व्हाट आई वांट इज कि अब इसके मार्क्स यहाँ पे आए, ठीक है, ठीक है, 253 वो यहाँ पे एंटर कर लेगा, एंड देन अगेन मैंने कॉमा लगाया, अब मुझे फिर से स्पेस चाहिए अर्जुन के मार्क्स के बीच में, और जो मैं मार्क्स लिखना चाहती हूँ उसमें, अगेन इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्पेस, मार्क्स, ठीक है, full stop, and then close the inverted commas, close the this is basically the bracket, and then there you go. So over here you have everywhere you want the space, you will have to enter it manually, but text join wale mein you just put it at one place in the starting, in the delimiter thing, and you are sorted for the whatever cells you are joining. Okay, this is how the what we can say the text join function works. Similarly अगर हम ampersand की बात करते हैं, it also does the same. You can see the syntax over here. You select the cell, then you put ampersand, then आप again वहाँ पे space रखोगे, inverted commas open करोगे, space रखा, जो भी आपको remarks चाहिए आपने वो लिखा, फिर space, then inverted commas, फिर you
पुट इन एंड, जिस भी सेल को आपको ज्वाइन करना होगा ना, दो सेल को जब ज्वाइन करना हो तो उसके पहले आपको एंड बार बार लिखना पड़ेगा. ओके, सो दैट इज हाउ एम्परसैंड वर्क्स. एंड आई बिलीव आपको भी समझ में आ रहा होगा कि टेक्स्ट जॉइन इज द मच मोर easier way to do this, right? So that's it for today's session. You will get the link for the template. You can also start doing it. I hope अभी तक कर रहे होगे. जिसने नहीं किया होगा वो, they can get the link from the description box and they can get started basically with their Excel thing. Okay, I hope the session was meaningful. It was helpful to you in a lot of ways, and stay tuned for such more sessions. Okay, till then, have a great day.